Good morning, students. So, in this class, we are going to start a new chapter, chapter 10 of class 9th, science gravitation. Okay, so gravitation, I hope you are a little bit familiar with the concept of gravitation. आपने सुना होगा ग्रेविटेशन के बारे में, पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपको पता होगा. ठीक है, तो जैसे ही आप ग्रेविटेशन के बारे में सुनते हो, यू थिंक अबाउट दैट एप्पल फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ. कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है, देन यू से दैट इज ग्रेविटेशन, राइट. And you know that all the planets revolve around the sun and all satellites revolve around planets. For example, moon revolves around our earth. So that is also due to gravitation. तो इतना आपको थोड़ा बहुत आइडिया है ग्रेविटेशन के बारे में. But in this chapter we shall study more interesting concepts, okay, more about gravitation. So first we will know that what is the meaning of gravitation. What is gravitation? Meaning of gravitation. So what does gravitation actually mean? So first thing you should know that gravitation is a force. There are different kinds of forces in this universe, right? Magnetic force, electrostatic force, and this is gravitational force. So gravitation is a kind of force. Okay, so every object in this universe, in this whole universe, this is a universal law. Universal law means it is applicable to each and every object and each and every place. So every object in this universe attracts other object. Every object in this universe attracts the other object with a force which is called gravitational force or gravitation. Just remember, you may write it down that what is gravitational force. Okay, this is a universal force, universal law, and every object in this universe attracts every other object. Okay, so that is gravitational force. Okay, now generally we confuse gravity and gravitation. Are you able to differentiate between gravity and gravitation? What is the difference? That what is gravity and what is gravitation? Okay, so gravity is a specific kind of gravitational force which is exerted by our earth. So gravity is the gravitational force of earth. Gravitational force of earth is called gravity. So gravity is just a kind of gravitation force. Both are different things. Okay, but gravity is a type of gravitational force, is a specific type of gravitational force, because we are living on earth, so specifically we call gravitational force of earth gravity. Okay, so जब भी आपसे पूछा जाए what is gravitation, don't say that earth attracts everything. Say that every object in the universe attracts other thing. If you are asked gravity, then you can say force by earth, force exerted by earth. So this is the difference between gravity and gravitation. Okay, so in chapter 9, force and laws of motion, you studied some laws of motion, laws of force. You studied about force. Okay, you studied 3 laws of motion, right? So those 3 laws, first law of motion, second law, third law, were also universal laws. They are applicable to each and every object and every type kind of force. ठीक है, so जो भी force है, किसी भी type का force है, हर force पर, हर object पर वो तीनों laws of motions applicable होते हैं, right? So वो laws of motion gravitational force पर भी apply होंगे. So what is the relation with second law and third law of motion? ठीक है, so second and third law, how these are applicable to gravitation force? देखिए, first we see third law. You should know about the meaning of third law. We have studied this, right? That when an object applies force on another object, the second object also applies equal and opposite force on first object. Okay, so you can say that forces are always paired. फोर्स सिंगल नहीं होता है, फोर्स हमेशा
पेयर होता है. ओके, सो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस. ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट. सो इट मीन्स that according to gravitation, when one object will attract another object, ठीक है, the second object will also attract the first object. ठीक है, so both the objects exert equal and opposite forces on each other. ठीक है, if this is A and this is B, okay, A exerts force on B, similarly B also exerts force on A. Okay, so these forces are equal and opposite on, and they act on different objects A and B. Okay, so action and reaction forces. So both objects exert equal forces on each other. ठीक है, आपसे पूछा जाए कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो दोनों ऑब्जेक्ट का सेम फोर्स होगा, इक्वल फोर्स होगा. ठीक है, सो दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन ग्रेविटेशन. Now what was second law? What was second law of motion? If you remember its statement, then it says that force is directly proportional to rate of change of momentum, and mathematically you derived F equal to ma. This is just a revision, we have studied about this before. So it says this mass is inversely proportional to acceleration. Means किसी object का mass कम होगा, for a constant force the object with less mass will experience more acceleration and the object with more mass will experience less acceleration. ठीक है, मास ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम. ओके, सो सेकेंड लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू ग्रेविटेशन. और इस चीज़ से आप आंसर कर सकते हैं कि भाई ओनली अर्थ अट्रैक्ट्स मून. ठीक है, अर्थ और मून दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है, इक्वल फोर्स है, लेकिन फिर भी मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, अर्थ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड मून. व्हाई अर्थ अट्रैक्ट्स मून, मून डज नॉट अट्रैक्ट अर्थ. मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में है, दोनों ही अट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरे को, लेकिन मूवमेंट मून की क्यों हो रही है, अर्थ की मूवमेंट क्यों नहीं हो रही. ओके, सो दैट यू कैन आंसर बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज सिंस m is inversely proportional to acceleration according to F equal to ma, so mass of moon is very less than mass of earth, so acceleration of moon will be very higher than the acceleration of earth. ठीक है, तो ये चीज़ आप बहुत बार कर चुके हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में. आप वो कार और ट्रक का जो कॉलिजन पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं कि फोर्स किस में ज़्यादा होगा, फोर्स बराबर होगा, एक्सेलरेशन किस में ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा. उसी तरीके से मून का मास कम है तो इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, इसीलिए मून इज अट्रैक्टेड बाई अर्थ. मून शोज मूवमेंट, अट्रैक्शन दोनों में होगा. मून ऑल्सो अट्रैक्ट्स अर्थ, अर्थ ऑल्सो अट्रैक्ट्स मून. ठीक है, अर्थ में जो टाइड्स आती हैं, सीज में जो टाइड्स आती हैं, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ मून. सो फोर्स आर एक्सर्टेड बाय बोथ मून एंड अर्थ, इक्वल एंड अपोजिट, बट मूवमेंट वी सी ओनली ऑफ मून. मूवमेंट हम सिर्फ जो है मून की देखते हैं कि मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, अर्थ इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड मून, बिकॉज मास ऑफ मून इज वेरी लेस देन मास ऑफ अर्थ, सो इट्स एक्सेलरेशन इज वेरी हायर देन एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ. सो दैट इज व्हाई we can apply second law of motion to law of gravitation. Okay, so that was second law and third law. So in the next topic, so एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, बार बार आ रहा होगा कि हर चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, एवरीथिंग अट्रैक्ट्स एवरीथिंग, तो हर चीज़ रेस्ट पर क्यों है. ठीक है, मेरे सामने एक टेबल है, चेयर है, ये भाई दे आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, वे एक दूसरे को तरफ मूव क्यों नहीं कर रहे हैं. ठीक है, जब अर्थ किसी भी एप्पल को या किसी भी चीज़ को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करती है, ठीक है, प्लैनेट्स आर अट्रैक्टेड बाय सन. ठीक है, एंड सिंस दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ, एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ ग्रेविटेशन फोर्स. फिर ये छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके आसपास, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रही. ठीक है, सो दैट इज आंसर बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ gravitation. Universal law of gravitation. So this is a law, specific law given by Newton. ठीक है, जैसा कि लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने दिए थे, ऐसे ग्रेविटेशन लॉ जो यूनिवर्सल लॉ है वो भी न्यूटन ने दिया था. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो नाउ वी शैल स्टडी व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ. ठीक है,
इट ऑल्सो गिव्स द क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ फोर्स, कि फोर्स कितना होगा। देखिए सिंपल आंसर इज कि हर चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, बट वी कैन नॉट सी दैम मूविंग बिकॉज दैट फोर्स इज निग्लिजिबल। दैट वैल्यू ऑफ फोर्स, जब आप अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करेंगे फोर्स की वैल्यू, दैट विल कम आउट वेरी निग्लिजिबल, दैट विल नॉट बी काउंटेड। ओके, सो by this law we shall find the value of force, how much force and on what factors does this force depends. Force of gravitation depends on some factors, and according to that we shall derive a formula, and then we can calculate the value of force. Okay, so let's begin universal of gravitation. So what does universal of gravitation say? What is its statement? Listen carefully, I will also write it down. That every object in this universe attracts other object with a force that is directly proportional to means directly depends on, okay, directly depends on product of their masses. There are two objects और इनके बीच में फोर्स कितना होगा, that depends on multiplication product of their masses. ठीक है, फोर्स दोनों के बीच में इक्वल एंड अपोजिट ही होगा, एंड दैट विल डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मासेस। ठीक है, एक का 5 है एक का 10 है, तो 5 × 10 50 kg के प्रोपोर्शनल जो है इनका फोर्स होगा। ठीक है, पहली स्टेटमेंट। ठीक है, देन इट सेज दैट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीन्स इनवर्सली इट डिपेंड्स, मीन्स एक अगर एक क्वांटिटी कम होती है तो दूसरी बढ़ेगी, इंक्रीज होती है, तो अपोजिटली डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, सो इट मीन्स डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा दोनों के बीच में फोर्स कम होता जाएगा, ये कॉमन सेंस की बात है, और जैसे जैसे दोनों पास आते जाएंगे ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन सेज दैट ग्रेविटेशन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर masses. So gravitation force we can write by F because it is kind of force directly depends on product of their masses m1 and m2. Okay, so you can consider there are two objects, एक का मास m1 है एक का मास m2 है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। Okay, and there is gravitation force between them. Okay, दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट। सो दिस इज द कंडीशन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड सेकंड इट सेज दैट इट इज अपोजिटली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा फोर्स उतना कम होता जाएगा। ठीक है, एंड इट इज स्क्वायर मीन्स अगर डिस्टेंस 6 टाइम्स रिड्यूस होता है, अगर डिस्टेंस 6 गुना कम होता है तो फोर्स 6 × 6 स्क्वायर 36 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर 1/r होता तो सिंपल होता, 6 गुना बढ़ता तो 6 गुना घटता, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो दैट विल 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो स्क्वायरली जो फोर्स है वो डिपेंड करता है। ठीक है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, so we can combine these equations 1 and 2 to get F proportional to m1 and m multiplied by m2 divided by r². So we have got the quantities on which force depends. So this force depends on m1, m2 and r. This is proportional to, not equal to. Proportional to means it is not exactly equal to m1 into m2 by r². ठीक है, इट इज इक्वल टू सम वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस। ठीक है, सो यू कैन से दैट 25 इज प्रोपोर्शनल टू 5, राइट, 25 प्रोपोर्शनल टू 5, बट इट इज नॉट इक्वल टू कब होगा जब वी विल मल्टीप्लाई 5 × 5, जब हम कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं अगर 20 हो तो 20 इज प्रोपोर्शनल टू 4, क्योंकि 20 is 4 multiplied by something, so this is constant. Similarly that this is proportional, so this is not exactly equal to, जब भी आप proportionality से equal to sign लिखते हो, so you put a constant, so that constant in this equation we write G, capital G, m1 m2 by r².
square and this g is called gravitational constant, universal gravitation constant. This is universal gravitation constant. constant है मीन्स इसकी वैल्यू फिक्स है जो भी मैं आपको बताऊंगा, और यूनिवर्सल मीन्स एवरीवेयर इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड, ठीक है, हर जगह पर सेम वैल्यू होगी g की. ओके, सो दिस बाय दिस इक्वेशन वी कैन फाइनली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स. ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा. नाउ g की वैल्यू कितनी होगी. g कांस्टेंट है एंड इट्स वैल्यू you can write it down. You can see here that g equal to, see carefully, you always have to remember this, 6.67. okay, 6.67 into 10 raised to power minus 11, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. 6.67 into 10 raised to power minus 11 and its unit is Newton meter square per kilogram square. per kilogram square means किलोग्राम माइनस में होगा उसकी जो पावर, किलोग्राम -2. सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर, वही बात है, ठीक है. तो जब भी आप डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर आते हो तो पावर माइनस में हो जाती है, ये आपको पता है. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ऑलवेज रिमेंबर इट, जितना भी प्रैक्टिस करोगे आप उससे पता चलेगा. जी की वैल्यू जो फाइंड आउट की थी वो की थी हेनरी कैवेंडिश ने. कैवेंडिश एक साइंटिस्ट था जिसने एक रोड की हेल्प से एक रोड ली थी. उसने कुछ ऐसा किया था, रोड ली थी और रोड के अराउंड दो जो है मासेस अटैच किए थे, तो उससे रोड थोड़ी बेंड हो गई थी, ठीक है, टॉर्जनल फोर्स आ गया था उसमें. उसके बाद इसने दो बड़े मासेस इसके पास लेकर आए, उससे वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो ये रोड थी ये वापस से ये अपनी पोजीशन पर आ गई थी. सो टॉर्जनल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल करके उसने कुछ ऐसा करके, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसने कुछ कैलकुलेशन करके ये जी की वैल्यू फाइंड आउट की थी कि जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11, ठीक है. तो उसने फोर्स कैलकुलेट किया था, क्योंकि देखिए ग्रेविटेशन इस कांस्टेंट के बिना हम फोर्स नहीं निकाल सकते, लेकिन उसने किसी मेथड से, जो भी अभी मैंने थोड़ा सा आपको बताया, उस मेथड से फोर्स की वैल्यू कुछ कैलकुलेट की, उससे फिर जी की वैल्यू फाइंड आउट की. सो दैट इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल वैल्यू ऑफ जी, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11, ठीक है. सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू शैल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ gravitation force. You can substitute the value of g, which is 6.67 into 10 raised to power -11, masses of both objects and distance between them. So this is universal law of gravitation, okay, that inversely directly proportional or to total value है, that every object in this universe attracts every other object with a force that is proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance. This is called universal law of gravitation. Then you can write the formula. This is the formula for gravitation force. Okay. So now there was a question. Your question was that why everything does not move towards each other. हर चीज़ क्यों नहीं मूव करती? क्योंकि देखिए F डिपेंड करता है डायरेक्टली G पर, और G की जो वैल्यू है वो उसका ऑर्डर देखिए आप -11. -11 का मतलब है 6.67 डिवाइडेड बाई 10 रेज़ टू पावर 11. फॉर एग्जांपल इसका ऑर्डर है, ये वैल्यू ऑफ जी जो है, जी का जो ऑर्डर है वो ये 1/10 रेज़ टू पावर 11 मीन्स अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे 0.000000 बहुत सारी जीरोस आएंगी, ठीक है. तो इट्स वैल्यू इज वेरी 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 11. सो 11 जीरोस के बाद बनाएगा तो बहुत बहुत छोटी जो है जी की वैल्यू है. इसका मतलब है ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है जनरली बहुत ज़्यादा कम होता है और वो ऑब्जर्व हम नहीं करते हैं, इसलिए हर चीज़ जो है मूवमेंट आप नहीं देख सकते अनलेस कि जो ये मासेस का प्रोडक्ट है, जो मास का प्रोडक्ट है वो इतना ज़्यादा हो कि वो 10 रेज़ टू पावर -11 को भी ओवरकम करे. मीन्स
10⁻⁻11 के बराबर मत, मीन्स 10⁻, प्लस में पावर हो और 11 के आसपास हो, 10⁻11, 10⁻12, इतना ज़्यादा किसी चीज़ का मास हो, तब जो है ग्रेविटेशन फोर्स ऑब्जर्वेबल होता है। ठीक है, सो दैट इज वाई ऑल द बिगर थिंग, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं वो मूव करती हुई हमें दिखाई देती हैं और बाकी चीज़ें नहीं, बिकॉज जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, इसीलिए जनरली फोर्स डिपेंड्स ऑन जी, फोर्स भी बहुत कम होता है, अनलेस दीज ऑब्जेक्ट्स आर वेरी लार्ज सेलेशियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्पेस के जो ऑब्जेक्ट होते हैं तो वहाँ ज़्यादा ग्रेविटेशन हम देख सकते हैं। अर्थ का भी देखिए मास कितना ज़्यादा होता है, इसीलिए अर्थ में ग्रेविटी होती है। ठीक है, सो दैट इज द रीजन। सो दैट वाज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस you can calculate, you can do solve some numerical. Must write it down, note it down in practice. जब तक आप लिखेंगे नहीं, वैल्यूज लर्न आपको नहीं होंगी, आप नहीं कर पाओगे, तो पहले इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, तब आप अच्छे से इसको देख पाओगे, कर पाओगे। तो you should know that what is the mass of earth, what is the radius of earth, moon, basic things you should know about this. So mass of earth, if we talk about earth and if we need calculate what's mass and radius, तो रेडियस अर्थ की होती है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर मीन्स इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट होती है 6.30। अगर आप इसको मीटर्स में लिखेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर्स होती है, ओके, तो मीटर्स में होगी 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर्स। दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। यू कैन कैलकुलेट 6400 किलोमीटर कितना ज़्यादा होता है, तो उतनी ज़्यादा जो है अर्थ की रेडियस होती है। ठीक है, मास जो है अर्थ के ऑर्डर होता है 10⁻24। ठीक है, इतना ऑर्डर होता है अर्थ के मास का, बहुत ज़्यादा, इसीलिए अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर पाती है। ठीक है, दैट इज अप्रोक्सीमेट 6 इंटू 10⁻24, 5.98 होता है, 6 इंटू 5.98 इंटू 10⁻24, दैट इज द मास ऑफ अर्थ। मून की बात करें तो मून बहुत छोटा होता है ऑब्वियसली, सो इसका जो ऑर्डर होता है मास का वो 10⁻22 होता है, 7.3 इंटू 10, 7 इंटू 10⁻22, और इसकी ऑब्वियसली जो रेडियस होगी वो भी बहुत कम होगी। इसकी रेडियस कुछ 1000 किलोमीटर के बराबर होती है, 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर्स। ओके, सो 1740 किलोमीटर्स इसकी रेडियस होती है। वैसे आपको याद रहे अच्छा है, याद नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, आपको वैल्यूज इसकी दी जाती हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आपको जनरली अप्रोक्सीमेशन होना चाहिए कि अर्थ का मास कितने ऑर्डर का होता है, 24, 10⁻24, मून का 10⁻22। ठीक है, रेडियस 6400 किलोमीटर अर्थ की होती है और 1740 मून की होती है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज यू कैन कैलकुलेट द ग्रेविटेशन फोर्स between earth and moon. Okay, so these are the some constants. Now we know that why we do not see every object moving, okay, but there are many objects, bigger object, which you actually see moving. तो every object earth attracts towards itself, तो ये आपको समझ आता है कि अर्थ नीचे। लेकिन planet, how do planets move around the sun? How do satellites move around the planets? You know that planets move in circular path around the sun, okay, and satellites move also in circular path around the sun. Actually this path is elliptical, but for calculation generally we take circular path. Okay, so why planets move around the sun in circular path? Why do not planets fall into the sun directly? अगर बीच में अट्रैक्शन है तो दोनों प्लैनेट जो है सन में क्यों जाकर नहीं गिरते? ऑब्वियसली प्लैनेट का जो ग्रेविटेशन फोर्स दोनों का है, दोनों एग्जर्ट कर रहे हैं, लेकिन मास ऑफ प्लैनेट सन से बहुत कम है, तो एक्सेलरेशन प्लैनेट का ही होगा। तो ये नीचे क्यों नहीं गिर जाता, गोल गोल क्यों घूमता है? वाई दिस इज सर्कुलर मोशन। ओके, सो फॉर दिस you need to recall about the uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो कि आप चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़ा था,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की क्या होता है, चैप्टर 8 में पढ़ा था शायद. सो यू नो दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ. स्पीड कांस्टेंट है, दैट इज व्हाई इट इज यूनिफॉर्म. लेकिन सर्कुलर पाथ होने से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, बिकॉज वेलोसिटी स्पीड विद डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज होगी. ये आप पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से. सो देयर इज, जहाँ वेलोसिटी चेंज है वहाँ एक्सेलरेशन भी होगा. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो एक्सेलरेटेड मोशन, बट दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो ये चीज़ आपको पता है. बट एक और जो मेन चीज़ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, कब होता है ये. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेक्स प्लेस व्हेन velocity is perpendicular to velocity, the direction in which it is moving is perpendicular to the force it experiences. ठीक है. आपने दो चीजें पढ़ी थी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट पर होती है. टेंजेंट होता है लाइन पासिंग थ्रू ओनली एट वन पॉइंट ऑन द सर्कल. इस पॉइंट से जो लाइन पास हुई दैट इज टेंजेंट. तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है. ठीक है. लेकिन इसमें आपने पढ़ा कि फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द रेडियस होती है. ओके. सो ये फोर्स की डायरेक्शन. तो जब फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तब दैट विल बी द मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स applied on a moving object towards the center of the circle. ठीक है. So that is centripetal force and its acceleration will be centripetal acceleration. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है. ठीक है. We call it uniform but this is actually accelerated motion due to change in direction. So acceleration is centripetal acceleration, force is centripetal force. So this is the same concept which applies on the planets and satellites. Okay. So planets move around the sun due to centripetal force. ठीक है. ग्रेविटेशन फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके. सो प्लैनेट्स, अगर देयर वाज नो सन, कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता तो व्हाट वुड हैपन. प्लैनेट्स मान लीजिए मूव कर रहे हैं स्पेस में ऐसे ही. ठीक है. किसी भी डायरेक्शन में, ये वी डायरेक्शन हो गई. लेकिन सन जब सेंटर में हो जाता है तब वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर होंगे तो ये सर्कुलर पाथ होगा. जैसे आपने वो रोप का एग्जांपल पढ़ा था. आप एक रोप लीजिए और रोप के एंड में कोई भी स्टोन या रॉक छोटी सी बांध सकते हो और उसको ऐसे गोल गोल घुमाएंगे. ठीक है. तो वो गोल गोल घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी, सर्कुलर पाथ बन जाएगा. क्यों? क्योंकि आप जो फोर्स है जो आपने पकड़ा है रस्सी को, वो सेंटर पे पकड़ा है ना. मतलब जो पाथ है उसका सेंटर है. तो फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर बट इट्स वेलोसिटी, जो रॉक की वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे उस सर्कुलर पाथ की टेंजेंट की तरफ है, सीधा है. तो दैट इज व्हाई रॉक मूव्स इन सर्कुलर मोशन. सो सेम कॉन्सेप्ट इज इन प्लैनेटरी मोशन. ठीक है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फोर्स ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर and velocity is towards the tangent, they are perpendicular. So that is the movement of planets under gravitational force. Okay. And this gravitation force is also centripetal force towards the center, because this gravitation force is acting towards the center. So this is centripetal gravitational force. Okay. So this also applies on planets as well as on the satellites.